My screen is visible or not? Student, screen is visible or not? Yes, sir, visible. Okay. So what we discussed in last lecture? Anyone have any idea or you forgot it? Partial fraction. Okay, partial Finding fraction. inverse Z transform by. Yes, we discussed about the inverse Z transform by using partial fraction, and we did two example for that. I think we already done this with modulus Z less than 3 also. Okay, we discussed both the cases for this example, and we also started this example and completed up to here, I think. Am I right or not? Z square upon Z minus 1, Z minus 1 by 2. Yes, sir. Okay, we have completed part A and part B. So I start this session with part C. सर Yes. सर ये फर्स्ट सम है ना, उसमें वो सी वाला केस है ना, वो फिर से समझा है ना एक बार. Your voice is breakable. Your voice is break. हेलो सर. हाँ, yes, yes. यस सर, ये फर्स्ट जो सम है ना, उसमें वो सी वाला जो केस ना, 1/2 लेस देन जेड लेस देन Okay, 1 first वाला. example, 1 by mod Z less than 1 by 2 या C. या सी हाँ, यस. तो C तो मैं कर ही रहा हूँ मैं अभी. I start my session with the C. Okay. Am I right? Okay. In A and B, any doubt, student? Part A and B, any doubt? Those students who have present in last lecture, okay, only have rights to say that I have a problem, sir. If you are absent, then you cannot say that I have a problem, okay, because presence is compulsory. Okay, I assume that you have no doubt in A and B. Okay, so I go to part C. Okay, so look at here student, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो केस है वो कैसा केस है, तो यू हैव लाइक दिस. ओके, मैंने आपको समझाया था कि ये इन बिटवीन वाला एन्युलस रीजन पोलो जैसा है. ओके, क्लियर? The radius is here 1/2 and this radius is 1. Okay, like this. Right? So I start with that example with f of z is equal to z square upon z minus 1, z minus 1 by 2. That is my statement, given statement. Okay, sorry. Yes. Okay, z square upon z minus 1, z minus 1 by 2. Okay, so I start with that. Then I do the partial fraction. Okay, after partial fraction, you got 2z upon z minus 1 minus z upon z minus 1 by 2. Am I right? We already done this step. Okay. सर. Yes. सर प्लीज रिपीट वंस अगेन दिस ये तो पार्शियल फ्रैक्शन है ख्याति. इट इज पार्शियल फ्रैक्शन, स्टेप नंबर 1. ओके, नो. यहाँ पर बी लेस देन जेड लेस देन ए है ना. हाँ, वो तो बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन दिस स्टेप इज ओनली आफ्टर यू कंप्लीट द पार्शियल फ्रैक्शन, देन यू विल गेट दिस स्टेप. Okay, if you have if you have no doubt, then please see here. Okay, we already discussed this. F of z is equal to z square z minus 1 z minus 1 by 2. Okay, now after doing partial fraction, we get a upon z minus 1 plus b upon z minus 1 by 2 for fz upon z. Then if you solve that, then we get a is equal to 2 and b is equal to minus 1. Okay, then if you move z to right side, then we have f of z is equal to 2 into z upon z minus 1 minus z upon z minus 1 by 2. Now it's okay, Khyati? Yes. Okay, we already discussed this. Okay, we do the partial fraction for that, right? Yes sir. Okay, so I write यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो वही है, 2z अपॉन z माइनस 1. देखो यहाँ पे आप 2z अपॉन z माइनस 1 z अपॉन z माइनस 1 by 2. ओके, नाउ व्हाट इज माय स्टेप नंबर 2? तो फॉर स्टेप नंबर 2 यू हैव टू थिंक अबाउट द इंटरवल. ओके, सो व्हाट इज माय इंटरवल हियर? 1/2 लेस देन मॉड्यूलस z लेस देन 1. क्लियर? ओके,
तो अब उसको आपको दो पार्टीशन करना है. हाउ वी कैन डू पार्टीशन? सो फॉर दैट यू हैव थिंक अबाउट दी ये पार्ट और ये पार्ट. ओके, ये दोनों पार्ट को आपको अलग करना है. सो आफ्टर separating it, I have 1/2 less than mod z and second is mod z less than 1. Am I right? Any confusion up to here? Student? No, sir. What about others? No, sir. No? Okay. Then you can see here, what is my original condition? If I want to use binomial expansion, then this is my condition, modulus z must be less than 1. So I try to convert this form into this form. So I get 1 into 2z less than 1 and 1 upon 2z modulus में डाल दे तो भी चलेगा. Am I right? Okay, and here it is in that form, so we cannot convert it. No need to convert it. Done? Any doubt up to here? No, sir. Okay, so in first step you have no need to any change. Okay, but in second step you can see here you have to transfer it into 1/2z. So I start with that. So f of z is equal to minus 2, you can see here, minus 2 z minus 2 into z divided by 1 minus z, because what is my original form? 1 upon 1 minus x. So I transfer it into 1 minus z by common minus 1 or multiply by minus 1. Okay, now minus 1 is there. Okay, so minus 1 is there, so you have minus 1 into 3, सॉरी ये z है, सॉरी z डिवाइड बाय z में कॉमन ले रहा हूं तो 1 माइनस 1 अपॉन 2z हो जाएगा. दैट इज माय रिक्वायर्ड फॉर्म. ओके, सो आफ्टर कन्वर्टिंग दिस और आफ्टर अरेंजमेंट यू हैव इक्वल टू माइनस 2z अपॉन 1 माइनस z, देन माइनस 1 अपॉन z विल बी कैंसल आउट. Okay, so 1 upon 1 minus 1 upon 2z. Now what is the formula for 1 upon 1 minus x? It is 1 plus x square and so on. Okay, so I am using that. So minus 2z is outside and bracket 1 plus z square and so on, minus bracket 1 plus 1 upon 2z plus 1 upon 2z square and so on. Okay, any confusion up to here, student? No, sir. No, Okay. sir. Okay, then I multiply z and I put z inside. So minus 2, okay, minus 2 bracket z plus z square plus z cube plus and so on. Okay, so and minus 1 plus 1 upon 2z plus 1 upon 2z square plus 1. Okay, done. Now you can see here, 1 minute, you can see. Okay, now what is my next step? So is equal to minus 2 summation में मुझे लिखना है, तो पहले मैं summation as it is रखता हूँ. Okay, then what is my nth term here? So if I think about z raised to n, okay, then it starts from n equal to, sorry, m रखते हैं, तो m equal to 1 to infinity. Am I right? So this is also correct and this one is also correct. If I think about the nth term, then z raised to m plus 1 if I start from 0 to infinity. Clear? Okay, so उसको correct ही कर लेता हूँ, चलो उसको ऐसे ही लिख देते हैं. Okay, so if I put here in summation form, so what is my summation form? It is summation for first summation m equal to 1 to infinity z raised to m. Am I right? Okay, now minus is there. Now think about second. So what is my, if I write down in 1 upon 2 z raised to m, so from when my limits start? So m is equal to 0 to infinity, because if you replace 0 then it gives the 1, if you replace 1 then it gives the 1 upon 2z and so on. Okay, so here we have in next step
what is my required form? You think about the required form. So what is required form? The Z transform, required Z transform is summation k is equal to 0 to infinity f of z into z raised to minus k. Okay, so I required the power of z in minus, so I put here summation k is equal to minus infinity to 1 minus 1 and z raised to minus m. So what I do here, I only replace m is equal to minus k. Am I right? Okay, so here we have minus infinity to minus 1 z raised to minus m. Now think about this. So minus summation m is equal to 0 to infinity, it is correct, but because z raised to minus m, if you open this, then we have, okay, in k, you can write down in k, so it gives summation k is equal to 0 to infinity 1 upon 2 raised to k into z raised to minus k. Done? Any doubt? Clear? Then here, what is my Z transform, inverse Z transform for that? Okay, so यहाँ पे look at here, everybody look at here, because if you look here then you can understand. So what is my Z inverse of f of z is equal to, हम z इनवर्स को क्या बोलते हैं कि जो भी z रेस टू माइनस के, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस m कर दिया, सॉरी, this is my minus k. Okay, so this is my minus k. Okay, so what is my z inverse? So z inverse means the coefficient of z raised to minus k. So what is my coefficient of minus k in first? So it is minus 2. Okay, and for second it is minus 1 upon 2 raised to k. Okay, and first, what is the value of k in first? So it is k less than 0 and this is the k greater equal to 0. अब किसी को क्वेश्चन हुआ होगा कि सर यहाँ पे हमने दो पार्टीशन क्यों किए? क्योंकि ए एंड बी में तो हमने दो पार्टीशन नहीं किए थे, वो सीधा आ रहा था. ओके, यहाँ पे दो पार्टीशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब नेगेटिव कंसीडर करेंगे तब पॉजिटिव वाला 0 एंड जब पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तब नेगेटिव वाला 0 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जो रेंज है हमारी वो खुद ही दो पार्टीशन कर रहा है, इसलिए वी राइट डाउन इन टू वे, डिफरेंट टू वे. Any doubt up to here, student? Anybody? Sir. Yes. Sir, inverse Z transform partial fraction અને binomial બંનેથી find કરી શકાય છે. તો Yes. જ્યારે partial fraction થી find કરતા હોય તો f of z by z વાળી ટર્મ લેવાની and આ binomial માં f of z by z નહીં કરવાનું. No, 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 not required. हम f of z by z किसके लिए कर रहे हैं? देखो f of z by z जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा सिंपल हो जाए इसलिए कर रहे हैं. क्या थी? डन. लेकिन बाइनोमियल में तो वो करने की जरूरत नहीं है ना, वो सीधा आपको दिया होगा. गॉट इट? और नहीं दिया है तो आपको सीधा करना है, वहां पे रीअरेंजमेंट से ही वो आ जाएगा. गॉट इट? यस सर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हमारे यही एग्जाम्पल में ऊपर z स्क्वायर लेके हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया होता तो थोड़ा कितना डिफिकल्ट हो जाता. अंडरस्टैंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी इश्यू, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा. इसीलिए हमने क्या किया, उसको जो एक z था उसको f ऑफ z अपॉन z में ले लिया और ऊपर एक पावर हो गया, इसलिए हमारा सिंपल फॉर्म हो जाएगा. और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको पता है कि जो लोअर का जो पावर है इट इज ग्रेटर देन टू अपर, है ना? यस सर. ओके, इस तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे कि वो ऊपर वाला थोड़ा छोटा हो जाए, नीचे वाला थोड़ा बड़ा रहे. देन वी कैन डू पार्शियल फ्रैक्शन वेरी वेल. ओके? यस सर. ओके, नाउ एनी क्वेश्चन, एनी डाउट स्टूडेंट? एनीबडी? How many students understand this? Please raise your hand. Do fast, huh?
Do fast, student. Please raise your hand if you understand. And if you don't understand, then please ask me your question. I am ready to answer. Okay, Vikas, Dhruv, Sarth, Aditya, Ankita, Mishruti, Sameep, Mohammed, Vasishta. What is your doubt? Or you are not there? Only two options you have. Okay. Okay, I go for next example. Okay, then think about second example. Do fast, student. Z cube upon Z minus 3 into Z minus 2 whole square. Okay, now do the partial fraction for this. First, you have to convert it into, say this is the f of z. Okay, then try for f of z, a partial fraction for f of z upon z equal to z square divided by z minus 3 into z minus 2 whole square. Okay, then do the partial fraction for this. So it is a upon z minus 3 plus b upon z minus 2 plus c upon z minus 2 cube. Okay, sorry, 2 cube, not 2 cube, 2 square. Okay, then do the partial fraction and give me the ABC. Do fast. Okay, what is the value of ABC? You know very well about the partial fraction because you have already learned in Laplace transform. So we cannot waste our time. ओके मैं समझा ही देता हूँ. चलो यहाँ पे देखते जाओ और जो करना चाहता है वो करो, है ना. और वेरीफाई हियर f of z upon z करेंगे then we have z square upon z minus 3 z minus 2 square. If you partial fraction it then f of z upon z will be a upon z minus 3 plus b upon z minus 2 plus c upon z minus 2 square. I already discussed this. Okay, then you have multiply or you take LCM here. Okay, so if you take LCM then upper side is your z square equal to a z minus 2 whole square plus b z minus 2 z minus 3 plus c z minus. This is the numerator. Okay, numerator in both the sides. That's why they write down in this way. Number 1 usko bole equation number 1. Now if you want to find a then put z is equal to 3 both the side. So if you put z is equal to 3 both the side then you have this side 9. A means 3 minus 2, that means 1 plus 0 plus 0. So A is equal to 9. If you substitute Z is equal to 2, then you have 4 is equal to 0 plus 0, okay, plus C 2 minus 3, it gives minus 1, then C is equal to minus 1. एंड c इज इक्वल टू माइनस 1 मिलने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला, इसके बाद वाला जो स्टेप है वो समझना जरूरी है. तो लुक एट हियर स्टूडेंट. सो इफ यू वांट टू फाइंड b then you have one equation for that, and for that you have to do this way: a into z square minus 4z plus 4 plus b z square minus 3z minus 2z plus 6 and c from equation 1, okay, z minus 3. So you have to compare the coefficient of z square. So यहाँ पे z square है and इस साइड पे ये हो जाएगा a plus b into z square, and there is some another terms also in terms of z and constant. Okay, but I have only required one equation. So a plus b is equal to 1 after comparing both sides. So a plus b is equal to 1. So substitute here a is equal to 9. So b is equal to 1 minus 9. It gives minus 8. So what is my original form of partial fraction? You can see here the original form of partial fraction is we have, okay,
f of z upon z is equal to a upon 1 mid. Where is it? Yes, a means क्या था? 9. So my form is 9z upon, no, 9z not, 9 only, 9 upon z minus 3, 9 upon z minus 3 प्लस माइनस b हमारा -8 है, इसलिए -8 अपॉन z माइनस 2 प्लस मेरा c था वो -4 था, तो -4 अपॉन z माइनस 2 स्क्वायर. ओके, एनी कंफ्यूजन अप टू हियर स्टूडेंट? एंड व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज f of z is equal to 9z upon z minus 3, sorry, z minus 3 minus 8z upon z minus 2 minus 4 upon z minus 2 square. Okay. Any doubt up to here? No, sir. Okay. Now, if you know the formulas of Z transform, then you no need to discuss the series, expansion and all these things. Okay. अगर आपको इसकी फॉर्मूला सीधा पता है, then you can also do the inverse Z transform easily. For example, here the apply inverse Z transform both the side. Okay, so if you apply inverse Z transform, then what is my formula? Z inverse Z of f of z is equal to 9 outside चला जाएगा, z inverse of z upon z minus 3. Okay, -8 बाहर चला जाएगा, z inverse of z upon z minus 2. Okay, now 4 outside चला जाएगा, z inverse upon 1 upon z minus 2 square. Okay, now think about the ROC. Okay, so my ROC is, what is my ROC? ROC is मॉड्यूलस z ग्रेटर देन 3. ओके, तो यहाँ पे देखो, यस, मॉड्यूलस z ग्रेटर देन 3. तो जब मॉड्यूलस z ग्रेटर देन 3 है तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 3 है, 2 है, 2 है. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज द आउटसाइड ऑफ द सर्कल. ओके, दैट मीन्स if your z greater than 3, then it is also greater than, okay, it is also in the z minus 2. Okay, so there is no any need to expand here. Okay, because we have the formula. And what is that formula? Look at here. तो सीधा आपको मिल जाएगा अगर हमारी आप yes, if you want to go with the previous method, then you can also welcome. Okay, there is no issue, but if you know the formula, then you can directly write down that. That means the formula for this is 3 raised to k. Okay, -8. What about the second? Z upon Z minus a raised to k. 2 okay? raised to k. Yes, 2 raised to k. Yes, it is 2 raised to k. Now last 1 upon, sorry, I think there is a z, I forgot to mention it. Yes, here z is there. Okay, क्योंकि जो z राइट साइड गया वो यहाँ पे गलती से रह गया. Okay, sorry for that. Okay, so the formula for z upon z minus 2 whole square is, क्या होगा? k तो आएगा. ओके, चलो k तो आया, लेकिन ये क्या है कि z की जगह पे z माइनस 2 है, तो वो हमारा डैम्पिंग रूल यूज होगा ना. दैट्स वाई 2 raised to k is also there. Student, are you getting my point? Yes, sir. And k is greater equal to 0 for greater than a. Okay, whenever you have modulus z greater than a, then the k starts from greater equal to 0.
ओके, बिकॉज इट इज द वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म। जो अभी हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो सारी वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म है। क्लियर? एनी डाउट अप टू हियर स्टूडेंट? नो सर। सर ये 2 वाला पता नहीं चल रहा। ओके, उसके लिए मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो है आपके पास ख्याति? यू हैव दैट, सर you have that formula? यस सर। formula I think formula number 8 देखो, what is it? z into a raised to k into f of k। ओके, ये था ना हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ k into a raised to k is equal to a into z upon z minus a whole square। am I right? यस सर। हाँ, तो फ्रॉम दैट यू हैव a raised to k means a is 2 यस। and k is there। ओके सर। okay, done? clear? यस सर। okay, so this is our second example। okay, now we go for the next example। any confusion? how many students understand this way, डायरेक्ट यूजिंग फॉर्मूला? बट ये तभी करना है जब आपके पास ये इंटरवल है ना? इफ यू हैव दिस इंटरवल। आप उसके दूसरे इंटरवल के लिए भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी है इसलिए यू कैन अप्लाई। बाकी थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा टू अंडरस्टैंड दिस, इसलिए। ओके, बट ये है तो आप 100% ये यूज कर सकते हो। क्लियर? ओके, क्योंकि ये सीधा आप अप्लाई करके k ग्रेटर इक्वल टू 0 मेंशन कर सकते हो। okay, how many students understand this example? please raise your hand। okay, good 29 30 yes, 31 32 okay, 34 yes, good out of 40 36 students understand this। तीर्थ, समीप, वृंद, मोहम्मद, सफी, वशिष्ठा, वृंद तो चालू रख के चला ही जाता है, ऐसा लग रहा है हर एक लेक्चर में। ओके, कोई फ्रेंड है तो उसको कॉल करो। मोहम्मद, सफी एंड वशिष्ठा, इज देयर एनी डाउट? Sir, I just joined now. I was having network problem. Okay, no problem। Vasishtha, but try to understand, huh, Mohammed? Yes, sir, no problem. Okay. Then we go for the next example. Okay. Try to partial fraction for this. Example number 3, 2z minus 1 upon z minus 1 whole square into z plus 2. Okay. Here we have f of z is equal to this one. So now for this example, you have to divide z both sides. 2z minus 1 upon z minus 1 whole square, z plus 2 due to the partial fraction. Okay, done? तो यहाँ पे 2 है। हाँ, ओके, सो आपका ये हो जाएगा a अपॉन z प्लस b अपॉन z माइनस 1 प्लस c अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस d upon z plus 2. Okay, this is my partial fraction. Okay, so find out a, b, c and d and थोड़ा जल्दी करना है ना सर। यस सर यहाँ पे 2z अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर इंटू z प्लस 2 माइनस sorry your voice is breaking। ख्याति, मतलब हम उसे सेपरेट करके कर सकते हैं। ख्याति your voice is breaking। हेलो सर। यस, हेलो। हाँ यस यस धीरे सर, यहाँ से पे बोलो, धीरे से बोलो। यस
हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, यहाँ पर 2z अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर इंटू z प्लस 2 माइनस 1 अपॉन ये जो न्यूमरेट डिनोमिनेटर है वो, मतलब हम उसे सेपरेट करके कर सकते हैं। वो लेंदी नहीं हो जाएगा क्या थी? क्योंकि वो है ना, आपको कितने कांस्टेंट फाइंड करने पड़ेंगे, 6 यहाँ पे और 6 वहां पे, सॉरी 3 यहाँ पे और 3 वहां पे, टोटल 6। तो सर यहाँ पर हम f ऑफ z बाई z करना जरूरी है, मतलब अपॉन z। हाँ, ये करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधा आपको आंसर देगा, इसीलिए। ओके। देर इज नथिंग एनी अदर कॉन्सेप्ट, ओके। क्योंकि सीधा z के लिए तो आपको 0 ही रखना है, a के लिए तो वो तो सीधा दे देगा, लेकिन उसकी वजह से बाकी के 3 जल्दी मिल जाएंगे। दैट इज द एम। ओके ओके सर। इसलिए हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन किया था तब हमने फिक्स कर दिया था कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो यू हैव टू गो विद द एफ जेड अपॉन जेड, तो आपका जल्दी हो जाएगा। ओके, इट इज फॉर सिंप्लिसिटी, देर इज नो एनी अदर लॉजिक फॉर दैट राइट नाउ। ओके, तो व्हाट इज ए, एनीबडी? जल्दी बताना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि सब कुछ मैं ही करूंगा तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट? क्योंकि दिस इज दी मैथ्स क्लास, सिर्फ देखने से या पढ़ने से कुछ पता नहीं चलने वाला। What we get here, anybody? c इक्वल टू 1/3। 1 मिनट, हाँ, c इक्वल टू 1/3 करेक्ट है, सही है। ओके, किसी को a मिला? a 0 है सर। a नहीं है 0, सॉरी। 0 होता तो दोनों साइड पे वो इंफिनिटी हो गया, लेफ्ट साइड पे क्या थी, है ना, f ऑफ z डिवाइड बाई 0, इट विल बी इंफिनिटिव। A minus 1/2. a माइनस 1/2 करेक्ट आंसर है, गुड। B 1/12. b 1 मिनट, b आई थिंक नो 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 नो। And D is equal to 5/6. c क्या मिला आपको? 1/3। 1/3. हाँ. ओके, एंड d? D 5/6. d मिला आपको 5/6, भी सर थोड़ा 5 करेक्ट। सर माइनस 5/9 18। मिला। 5/18 वाला सही लग रहा है मुझे, 5/18 सही है। इसको वेरीफाई करो जिसको नहीं मिल रहा है 5/18। एंड b जो है वो आपका मिलेगा 2/9। प्लीज वेरीफाई इट। सर ए क्या है वापस? हाँ, ए a माइनस 1/2, b 2/9, c 1/3 एंड d 5/18। मिला कि नहीं? हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट इट? यस सर। कितने लोगों को नहीं मिला है? रेज योर हैंड। अदर स्टूडेंट प्लीज पुट योर हैंड डाउन।
जिसको नहीं मिला है वही रेज हैंड करे, बाकी सब प्लीज पुट योर हैंड डाउन. ओके विकास एंड ओके भावेश, यू डोंट गेट इट. यस सर. सर ओके वो कहाँ? डी हाँ. वो -5/9 आ रहा है. -5/9 नहीं आएगा, डी तो सीधा है. इफ यू सब्सटीट्यूट z इज इक्वल टू -2 इन योर इक्वेशन 1, देन यू गॉट द d इज इक्वल टू 5/8, 18 मिलेगा. या करूँ यहाँ पे? सर एक बार कीजिए ना डी वाला. ओके यहाँ पे देखो 2z - 1 इक्वल टू a z - 1 होल स्क्वायर z +2 आया, प्लस बी Yes, sir. जेड -1 z -2 मिलेगा, प्लस सी z+2 प्लस डी z -1 होल स्क्वायर मिलेगा ना. ओके नाउ इफ यू सब्सटीट्यूट z is equal to -2 in this expression, then what we get? 2 into -2, that means -4 in -1, that means -5. Okay, now you can see here d into -2 into -2 -1, that means -3 whole square, so it is 9. Okay, so here you have d is equal to 5/18. Now it's okay Vikas? Yes, sir. Okay, sorry भावेश था ना. Yes, sir. Okay, Rashika, what is your doubt? You raise your hand. Okay, no doubt, thank you. Okay, then if you multiply z left side, sorry right side, then we get 1/2 z upon z plus 2/9 z upon z -1 plus 1/3 1 upon z upon z -1 whole square plus 5/18 z upon z plus 2. Am I right? Okay, now think about the first ROC. What is our first ROC? First ROC is modulus z. Okay, yes, we are doing fourth example. No, yes, modulus z greater than 2. Okay, so modulus z greater than 2. Okay, तो we can सर हम apply. थर्ड कर रहे हैं. थर्ड कर रहे हो तो 1-2 हो जाएगा, तो वेरी वेल. ओके नो प्रॉब्लम, यू डू योर ओन वे, बट आई एम गो विद द स्टेप बाय स्टेप. चलेगा ना? ओके तो यहाँ पे मॉड्यूलस z ग्रेटर देन 2 के लिए सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप. तो उसके लिए यहाँ पे z कैंसिल हो गया, तो z इनवर्स ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू -1/2 z इनवर्स ऑफ 1 plus 2/9. Okay, 2/9 z inverse of z upon z -1 plus 1/3 z inverse of z upon z -1 whole square plus 5/18. Sorry, z inverse is capital, always. Okay, z inverse of z upon z plus 2. Okay, so what is my first formula? -1/2. अब z ट्रांसफॉर्म किसका 1 मिल रहा है? इट इज द यूनिट इंपल्सन फंक्शन, सो इट इज डेल्टा k. ओके, प्लस 2/9 is there. Now z upon z -1 gives it is the z transform of 1. Okay, so here we have 1 plus 1/3 z upon z -1 whole square. One minute, student.
Okay, so what is our next formula? Z inverse of Z upon Z minus 1 whole square. अभी किया था previous example में. So what is it? K and 1 raised to K. Okay, so it is K into 1 raised to K, but 1 raised to K is 1, so there is no any value for that. 5 by 18 Z upon Z plus 2, it gives minus 2 raised to K using the formula. Okay, now any doubt in first case, student? No, sir. Okay, now for second, yes, second and third is very very important. Modulus Z less than 1, then what we can do here? Modulus Z less than 1. Okay, तो मॉड्यूलस Z लेस देन 1 है, तो थिंक अबाउट फर्स्ट टू लास्ट. ओके, तो फर्स्ट के लिए आप देखो, तो -1/2 f of Z, we have f of Z is equal to -1/2 प्लस 2/9. थोड़ी स्पीड कम हो गई है. Z upon Z minus 1, okay, plus 1/3 Z upon Z minus 1 whole square, okay, plus 5/18 Z upon Z plus 2. Okay, now if you have modulus Z less than 1, then it is automatically modulus Z less than 2 or not? 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो यहाँ पे जो है वो -1/2 मुझे एज इट इज रखना पड़ेगा. दैट इज नो एनी अदर डिस्कशन. ओके, सो -1/2 इज देयर. ओके, प्लस 2/9 एज इट इज. ओके, नाउ Z इज आउटसाइड, सो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मॉड्यूलस Z लेस देन 1 है, तो मुझे 1/1 माइनस Z में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. एम आई राइट? तो उसी फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस आउटसाइड. सो इट इज -2/9, 1/1 माइनस Z इज देयर, प्लस 1/3. अब इसमें से तो मैं माइनस आगे पीछे लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट मीन्स 3, सॉरी Z, थोड़ा देख लेना स्टूडेंट, क्योंकि ये जल्दबाजी माउस से लिख रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. 1 minus Z whole square, okay, Z upon 1 minus Z whole square plus 5/18. Now what we can do here? You have to form 1/1 minus Z or 1/1 plus Z. So for that you have to write down in this way 2 plus Z. Okay, no issue, because addition is commutative. आगे पीछे कर सकते हो, है ना. So -1/2 is there, -2/9 is there, Z is also there. Now expand this, so 1 plus Z square and so on. सर ये 1/3 के आगे माइनस नहीं आएगा? 1/3 के आगे नहीं माइनस नहीं आएगा, क्योंकि -1 बाहर निकालेंगे तो -1 होल स्क्वायर हो जाएगा ना. ओके, इसीलिए. हाँ वही. हाँ, प्लस 1/3 एज इट इज रहेगा. नाउ Z भी बाहर रहेगा. 1/1 प्लस Z होल स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज इट? भूल गए होंगे, मुझे पता है. 1/1 माइनस x होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन. सो वो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 2Z प्लस 3Z स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, देखो यहाँ पे उसकी फॉर्मूला एक बार फिर से देख लो. 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन है. ओके, तो यहाँ पर हमने वही किया है, 1 प्लस 2Z प्लस 3Z स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, प्लस 5/18. ओके, सो 5/18 इज देयर. नाउ Z इज आउटसाइड. ओके, अब यहाँ से मुझे 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके 1 आएगा ना मेरा, क्योंकि 1 इज कंपल्सरी. सो Z/2 मैंने बाहर ले लिया. ओके, सो Z/2 मैंने बाहर ले लिया. सो 1/, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 प्लस Z/2. ओके, तो इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे?
वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आगे वाला पूरा रिपीट करना पड़ेगा। 1-1/2, 2/9। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, z प्लस जेड स्क्वायर प्लस z⁻³ एंड सो ऑन। नाउ प्लस यहाँ पे भी मैं अगर z को अंदर ले लेता हूँ तो 3 तो बाहर है, 1/3 z प्लस 2z² प्लस 3z³ एंड सो ऑन। ओके, प्लस यहाँ पे जो लास्ट टर्म है उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे 3 कैंसिल हो, सॉरी 3 नहीं है, ओके सॉरी, 5/36 z एज इट इज रहेगा, और जो अंदर का है वो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सीरीज आएगा बिकॉज ऑफ प्लस, 1 प्लस माइनस ऐसे जाएगा, तो 1 माइनस z/2 plus z/2 whole square and so on. Okay, now it is -1/2 minus 2/9. Now if you put in summation, so what we get here, z⁻² m plus 1, or if you put m, okay, only m, so what is my starting limit? It is m is equal to 1 to infinity. Okay, now plus 1/3 is there. If I put summation here, so what is my starting value? If I put at z⁻² m, so m is equal to 1 to infinity. Okay, but यहाँ पे z के आगे 1 2 3 ऐसे जा रहा है, तो if you put m, so z³ है तो आगे क्या आ रहा है, 3 ऐसे ही जा रहा है ना, 1 मिनट, हाँ, यस, z प्लस z² प्लस, ओके, दैट मीन्स 1 2 3 ऐसे ही जा रहे हैं, z² है तो z आ रहा है, 2 आ रहा है, z³ है तो 3 आएगा, नेक्स्ट में जाएगा तो 4 z⁻4, तो इट इज m आएगा। ओके, m इंटू z⁻m। नाउ नेक्स्ट टर्म इज 5/36, और यहाँ पे आप सोचेंगे तो z को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, एक स्टेप में यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ कि z माइनस z² 2 प्लस z⁻² एंड सो ऑन। ओके, सो इफ आई पुट इन समेशन फॉर्म, सो समेशन यहाँ पे हो जाएगा, इफ आई थिंक अबाउट z⁻m, सो माई m स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity again. Okay, z⁻m, that means 1. Now think about the minus, so -1/2 क्या करना पड़ेगा मुझे, -1/2 मुझे पहला 1 चाहिए, तो आई राइट डाउन एज n करूंगा तो -1/1 हो जाएगा, m करना है, नॉट n। ओके, सो मेरा -1/m हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/m करूंगा तो -1/m हुआ, लेकिन अगर उसको -1 करूंगा तो 1 - 1 0 हो गया। सेकंड के लिए चेक करते हैं, 2, तो 2 - 1 1 आ गया, तो -1 मिलेगा, थर्ड में प्लस हो गया। ओके, गुड। नाउ थिंक अबाउट द डिनोमिनेटर, सो यहाँ पे 2⁻0 2⁻1 2⁻2 ऐसे जा रहा है, लेकिन अगर z⁻m होगा तो क्या आएगा, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे पहले 0 चाहिए, तो आई पुट एट 2⁻m, तो यहाँ पे 2⁻1 नहीं चाहिए, दैट मीन्स m-1। ओके, तो फर्स्ट में आप देखो, तो फर्स्ट में 2⁻0 हो गया, दैट मीन्स देयर इज नो 2। ओके, इफ यू पुट m इज इक्वल टू 2, देन इट इज 2 - 2 2, दैट मीन्स 2⁻1। इफ यू पुट 2, दैट मीन्स 3 2⁻3 - 1, दैट मीन्स 2⁻2, देन इट्स ओके। एनी डाउट अप टू हियर स्टूडेंट? No, sir. No? Okay, anybody? Okay, anybody else? अब यहाँ पे देखो, मुझे एक सेट करना बाकी बचा, क्या कि मेरा z का पावर सब जगह पे नेगेटिव चाहिए, तो व्हाट आई डू हियर, -1/2 एज इट इज, -2/9 इज एज इट इज, समेशन यहाँ पे k से स्टार्ट कर दूंगा, -∞ to -1 कर दूंगा, z⁻k कर दिया, चलो इट्स ओके, प्लस 1/3 समेशन k इज इक्वल टू अगेन -∞ to -1 कर दिया,
यहाँ पे k आ जाएगा, m रेस टू k आ जाएगा, सॉरी m रेस टू k नहीं, z रेस टू माइनस k आ गया, ओके, क्योंकि मैंने रिवर्स लिमिट ले लिया, ओके, नेगेटिव लिमिट। सो 5/36 समेशन अगेन k इज इक्वल टू -∞ टू -1, ओके, और यहाँ पे मिलेगा मुझे -1 रेस टू m-1, सॉरी m-1 मीन्स क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कि m की जगह पे क्या रखा हमने, -k रखा, ओके। सो इट गिव्स यू -k-1 डिवाइड बाय 2 रेस टू -k-1 and z raised to -k. Any doubt up to here, student? Anybody? Please let me inform. जल्दी थोड़ा। Student, any doubt? Please inform me. Yes. सर वो जो ऊपर सेकेंड वाला टर्म है उसमें माइनस के नहीं आएगा? 1 मिनट, सेकंड वाला टर्म है उसमें, हाँ z raised to थर्ड टर्म में, यस यू आर राइट, यस इट इज -k, गुड। एनी अदर प्रॉब्लम, एनीबडी? ओके, देन आई राइट डाउन डायरेक्टली z इनवर्स ऑफ f of z, ओके, लुक एट हियर f of z, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, और वो पॉजिटिव किसके लिए है, जब k 0 है तब, एम आई राइट? क्योंकि समेशन में आप लिखेंगे तो समेशन k इज इक्वल टू 0 ही होगा, ओके। तो k इज इक्वल टू 0 के लिए ओनली फर्स्ट टर्म है, इसलिए मैंने -1/2 को सेपरेट कर दिया। नाउ ऑल अदर समेशंस आर इन सेम पोजीशन एंड इट इज k, क्या होगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट, लेस और इक्वल टू 0 ना, लेस देन 0, सॉरी, लेस देन 0, ओके, क्योंकि देयर इज -1। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर हियर? सो -2/9 एज इट इज, द कोएफिशिएंट ऑफ z raised to -k is 1, so I write down only -2/9. Here you have -1/3 into k, and last one is -5/36 into -2 raised to k, ओके। क्या किया मैंने, जो -2 raised to k-1 था, ओके, वो तो एज इट इज रहेगा, सॉरी देयर इज नो चेंज इन, बट यहाँ पे आप देखो मैंने उसको पॉजिटिव 2 raised to को पॉजिटिव करने के लिए मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ, और -1 raised to k-1 है, तो यहाँ पर भी उसको नीचे ले जाऊंगा तो -1 मिलेगा, इसलिए मैंने बाहर माइनस रख दिया। सो ओनली वी हैव हियर k+1, ओके। एनी डाउट डियर स्टूडेंट? इफ यू हैव डाउट देन प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज। Okay, that means I accept that you have no doubt, okay, because no one raised hand, okay. Any problem student? क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ के भाग जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लेना प्लीज, है ना। ओके, नेक्स्ट डाउट्स आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में सर को सॉरी, अगर फर्दर अगर डाउट्स आएंगे इसमें ज़्यादा तो नेक्स्ट सेशन में ऐसा हो तो पूछ ओके, नेक्स्ट सेशन में भी आप मुझे पूछ सकते हो, है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो आपको बोला ही है ना, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। देन इसके लिए सोचो 1 लेस देन मॉड्यूलस z लेस देन 2, ओके, 1 लेस देन मॉड्यूलस z लेस देन 2, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट है 1 लेस देन मॉड्यूलस z एंड सेकंड पार्ट है मॉड्यूलस z लेस देन 2। अब उसको हमारे ओरिजिनल इंटरवल में अगर मैं ट्रांसफर करूं तो दिस इज द 1 अपॉन मॉड्यूलस z लेस देन 1 एंड दिस इज द मॉड्यूलस z बाय 2 लेस देन 1, ओके। तो जहां पर भी फॉर एग्जांपल ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन वाला टर्म कहा गया, यस दिस इज, ओके।
तो यहाँ पे आप देखो, तो z-1 जहाँ पे है वहां पे हम क्या बनाएंगे, उसको 1/z बनाएंगे। ओके, एंड जहां पे z-1 मिनट आ गया, यस, जहां पे z+2 है उसको z/2 बनाना है सिर्फ। ओके, तो यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पे आई इरेज दिस, तो उसके लिए थोड़ा आपका टाइम थोड़ा मैं लूंगा, है ना, उसके लिए तो कंप्लीट हो जाए वो। और बाकी के दोनों एग्जाम्पल, बाकी के जो 3 एग्जाम्पल है वो होमवर्क में दे रहा हूं, है ना, 4, 5 एंड 6 आई विल प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशन। ओके, और जो ये केस है वो कंप्लीट करके नाउ अवर चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, सो ये होमवर्क में दिया मैंने 3, तो थोड़ा कर देना, और उसका सॉल्यूशन में आपको ये पीडीएफ जो है अभी मैं दिखा रहा हूँ वो पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। ओके, और उसमें डाउट है, लेकिन यहाँ पे देखो ये बुक में सीधा लिख दिया है, लेकिन यू हैव टू वेरीफाई, एंड इसमें भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो किया वो k+1 हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा देख के अगर डाउट है तो मुझे पूछ लेना। ओके, लेकिन वी टॉक अबाउट 1 लेस देन मॉड्यूलस z लेस देन 2 राइट नाउ। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, so we have f of z, okay, as it is equal to -1/2 पहला स्टेप बचेगा, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है वो। ओके, तो +2/9। ओके, अब मुझे उसको 1 - z में करना था ना, क्योंकि आई हैव टू 1/z में करना है। यस, 1/z में, तो z आउटसाइड। ओके, तो 1 z तो था ही, मैं z नीचे से कॉमन निकाल रहा हूँ, देन इट विल बी 1/1 - z। ओके, प्लस 1/3, अगेन यहाँ पे z था, एक दूसरा z मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स इट गिव्स z², सो 1 - 1/z होल स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस 5/18 इज देयर, एंड हियर z/, यहाँ से मुझे क्या बनाना था, आई थिंक z/2, यस, z/2 में मुझे उसको लेना था, तो z/2 में, तो यहां से मैं सिर्फ 2 कॉमन निकालूंगा, है ना, तो z/2 +1 हो जाएगा। ओके, एनी डाउट इन दिस स्टेप स्टूडेंट, लेट मी इन्फॉर्म। हाँ, ओके, देन यू थिंक अबाउट द एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, जो आगे किया था वही का वही मिलेगा, लेकिन थोड़ा वेरिएशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो -1/2 एज इट इज, +2/9 इज ऑल्सो एज इट इज। नाउ z विल बी कैंसल आउट, सो हियर वी हैव 1 - 1/z प्लस, सॉरी प्लस आएगा, 1/z² एंड सो ऑन। ओके, फर्स्ट टर्म में ऐसे मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टर्म में एक z कैंसिल होगा, एक बचेगा, सो 1/3z एज इट इज। एंड यहाँ पे अभी हमने देखा था उसका फॉर्मूला क्या था, 1 + 2x + 3x²। ओके, सो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 + 2x मीन्स 2/z प्लस 3/z² एंड सो ऑन। ओके, प्लस 5/18 मीन्स 36 हो जाएगा, क्योंकि 18 × 2। नाउ z/, तो z बाहर चला गया, अब 1/z/2 फॉर्म है, सो इट गिव्स 1 - 1, सॉरी, हाँ यस, z/2 प्लस z²/4 एंड सो ऑन, देन ये माइनस आएगा एंड सो ऑन। ओके, नाउ थिंक अबाउट द समेशन इंडेक्स। Okay, so 1/2 plus 2/9 as it is. If you put in summation, then it will be z⁻k minus k, and k is running from 0 to infinity. Okay, now here 1/3z, अगर मैं z को अंदर लूंगा और समेशन में उसको रखूंगा तो क्या होगा, पहला टर्म है मेरा 1/, यहाँ पे देखो पहला टर्म होगा 1/z, सेकंड होगा 2/z², थर्ड होगा 3/z³ एंड सो ऑन, 4/z⁻2 एंड सो ऑन।
तो यहाँ पे अगर उसको आप समेशन में रखेंगे तो मुझे z रेज टू माइनस के चाहिए, तो उसके आगे वाला भी कोफिशिएंट क्या होगा मेरा क्या होगा, माइनस के ही होगा ना, नहीं प्लस के, ओके प्लस के, ओके प्लस के, क्योंकि 1 2 एंड के होगा 1 टू इन्फिनिटिव, ओके क्योंकि यहाँ पे देखो के 1 रखेंगे तो 1 बाई जेड मिला, अब के 2 रखेंगे तो 2 बाई जेड मिलेगा एंड सो ऑन। ओके नाउ थिंक अबाउट लास्ट टर्म, सो इट इज 5 बाई 36, z अगर मैं अंदर लेता हूं तो z माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाय 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ओके 2 स्क्वायर। तो व्हाट इज माय समेशन इंडेक्स हियर, तो समेशन यहाँ पे z का पावर मुझे अभी पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि z रेज टू ऊपर है ना, तो z रेज टू में अगर उसको k लिखूँ तो k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव, क्योंकि मेरा z रेज टू 1 से स्टार्ट करना है, तो z रेज टू 1 के लिए मेरा कोफिशिएंट क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 2 रेज टू k माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि 2 रेज टू 1 माइनस 1 0, 2 रेज टू 2 minus 1 that means 1, 2 raised to 3 minus 1 2 square and so on। okay now minus 1 by 2 is as it is plus यहाँ पे 2 by 9 as it is रहेगा, summation k is equal to 0 to infinity रहेगा plus 1 by 3 तो as it is रहेगा, summation k is equal to 1 to infinity में भी कोई चेंज नहीं है ना, k z raised to minus k as it is रहेगा। now लास्ट टर्म इज माई 5 बाई 36, ओके अब मुझे k की जगह पे माइनस k करना पड़ेगा है ना, तो व्हाट इज माई लास्ट टर्म, k इज इक्वल टू माइनस के, दैट मीन्स ओके इसको अगर m लिखता तो अच्छा रहता, तो लेकिन यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू माइनस 1 आफ्टर रिप्लेसिंग द माइनस के, ओके सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 रेज टू k प्लस 1 ऊपर ले लिया मैंने, और यहाँ पे z रेज टू माइनस के, ओके तो मेरा इनवर्स z ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा, कौन लिखवाएगा, चलो एनीबडी, एनी डाउट अप टू हियर स्टूडेंट, आई एम टेकिंग योर 4 to 5 minutes मोर, ओके सो प्लीज कोऑपरेट मी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एनीबडी, z इनवर्स ऑफ f ऑफ z क्या मिलेगा, चलो बताओ, कोई तो बताओ यार, तीर्थ ख्याति, चलो बोलो क्या होगा, एनी अदर पर्सन, आर यू देयर, अब तो मुझे वो भी डाउट होने लगा है, आप कुछ बोलते नहीं हो ना, स्टूडेंट आर यू देयर, फर्स्ट का Yes, नॉर्मल sir. होगा -2। यस देखो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, पहले वो देखो, पहले मेरा क्या हो रहा है कि 3 डिफरेंट क्राइटेरिया आर देयर, first criteria is 1 by 2, okay and it is only for k is equal to 0, am I right, yes or no, now think about second पॉजिटिव कहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट k ग्रेटर इक्वल टू 0, तो दोनों के लिए क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूँ तो एक तो 2 by 9 मिल जाएगा सेकंड केस में से, तो यहाँ पे छूट गया ना कुछ, यस z रेज टू माइनस के, ओके तो फर्स्ट में सेकंड में से मुझे मिलेगा 2 by 9 पॉजिटिव, एंड थर्ड में से मुझे मिलेगा k by 3, यस क्लियर, Yes, sir. अब जो थर्ड केस बचा वो मेरा नेगेटिव वाला बचा, एंड इट इज k लेस देन 0, सो फॉर दैट आई हैव 5 अपॉन 36, वो प्लस है या माइनस है, प्लस है, ओके यहाँ पे -1 रेज टू आएगा ना, आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, -1 रेज टू आएगा ना k -1, क्योंकि प्लस माइनस सीरीज है, ओके तो यहाँ पे -1 रेज टू k प्लस 1 आएगा, ओके सो -1 एक बाहर आएगा, तो माइनस एंड -1 रेज टू k विल बी पॉजिटिव, ओके इफ यू नहीं सॉरी नॉट पॉजिटिव, और आप सीधा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्लस करके -2 रेज टू k प्लस 1, यस इट्स बेटर,
क्लियर? ओके, तो वी हैव 3 पार्टीशन हियर. फर्स्ट k इज इक्वल टू 0 के लिए, सेकंड पार्टीशन जहां पर समेशन पॉजिटिव है वो, एंड थर्ड पार्टीशन इज जहां पे k नेगेटिव है वो. एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? No, sir. No, sir. पक्का? ओके, सो इफ यू हैव नो डाउट, किसी को है तो पूछ लेना प्लीज. हाँ, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कि आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा स्पीड किया है, लेकिन सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट आई डू इट. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 in your homework, and you try for that, and if you have any doubt then please contact me anytime. Okay, in office time. Okay, most probably, and I will provide a solution for that also. And if we have more time after completion of next unit, then we also go with this. Okay, अगर हम मुझे next unit में थोड़ा time मिल जाएगा, then I will discuss these 4 examples also, or we will arrange extra lecture for that also. Okay, so example number 4, 5, 6 in your homework, and do and try for that examples. Okay, and if you have doubt then please inform me, I will help you and I will provide a solution for that also. Okay, so if any doubt in today's session then please let me inform.